we'll start with our first lesson, that is the introduction to microeconomics. Now, before studying what is a microeconomics, let us understand what is the definition of economics. Ata, Abhi, economics, what is economics? The concept of economics that was introduced by the Professor Adam Smith. Adam Smith is called as the father of economics. Economics की शुरुआत कैसे हुई? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. Why? Because he is the first economist who has written the book that is Wealth of the Nation, which is considered as the first book in economics. एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन, ये जो बुक है ये फर्स्ट बुक मानी जाती है इकोनॉमिक्स की. And since it is the first book which consider the economics as a first, that is a separate subject, therefore Adam Smith is called as a father of economics. Now, what is the economics? Here, the definition of Marshall is given. Now, what is this definition? Economics is a study of mankind in the ordinary business life. It examines that part of the individual and social action which is most closely connected with attainment of material requisites of well-being. Means what? What is economics? Economics is a study of human behavior into the society related to the management of unlimited wants and the scarce resources. इकोनॉमिक्स क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना. ह्यूमन बिहेवियर के बारे में किससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज. यानी कि हमारे जो वांट्स है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो कैसे है? अनलिमिटेड है. लेकिन मीन्स टू अचीव दोस वांट्स, वो वांट्स पूरी करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज, अभी हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से? दैट इज इनकम. अभी इनकम इज अ सोर्स थ्रू विच वी सेटिस्फाई आवर वांट. हमारी जो जरूरत है हम लोग कैसे पूरी करते हैं? मनी या इनकम के थ्रू. लेकिन ये इनकम कैसे है? लिमिटेड है. सो सैलरी तो लिमिटेड है लेकिन जरूरतें कैसे? अनलिमिटेड है. सो देयरफॉर दैट लीड्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी इनकम सैलरी लिमिटेड है लेकिन हमारी जो वांट्स है वो कैसे है? अनलिमिटेड है. ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द अनलिमिटेड वांट्स एंड द स्केर्स मींस स्केर्स रिसोर्सेज. लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक्स का स्टडी वास्ट होते गया, the different branches started emerging. For the convenience of the study, the different economists, they have divided the economics into the various branches. उसमें से जो economist था, that is Professor Ragnar Frisch. Okay, Professor, you remember this name, Professor Ragnar Frisch. Now this Professor Ragnar Frisch, Frisch, he introduced the new branch. Ragnar Frisch, he has introduced the new branches. He has introduced the new concept in the economics. That is the microeconomics and macroeconomics. ये जो रैगनर फ्रिश है, इसने ये दो ब्रांचेस इंट्रोड्यूस किए हैं.
That is a micro and macro. Hello. Hello. So Professor Ragnar Frisch, he has introduced this new concept. They introduced the new branches, microeconomics and macroeconomics. Now, what is a micro? Micro means what? Small. Okay, microeconomics. The word microeconomics is derived from the Greek word micros. माइक्रो का शुरुआत कैसे हुआ है? दैट माइक्रो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. अतः हाँ, ये जो माइक्रो है हमने कैसे लिया है? ग्रीक वर्ड. माइक्रो इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये जो माइक्रो है ये कौन से वर्ड से है, कौन से लैंग्वेज से है? ग्रीक वर्ड माइक्रोस. ओके, so it is derived from the Greek word micros. Now what is the micros? M-I-K-R-O-S. This is the Greek word. और ये M-I-C-R-O-S is English word. So micros. Micros means what? It is a Greek word. Now what is the micros? Micros means what? Small. Micros का मतलब क्या हो रहा है? Small. So what is the meaning of small? Small यानी कि individual, one, single. Okay. So therefore we can see that we can define the microeconomics as that branch of the economics which deals with the study of individual economic units. Microeconomics किसके बारे में स्टडी कर रहा है? इंडिविजुअल के बारे में. It deals with the study about the individuals. Individual means single. So microeconomics deals with the study of individual economic units. Okay. Now इंडिविजुअल माइक्रोइकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करा. सिंगल, वन. इंडिविजुअल मींस वन, सिंगल. अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स कौन कौन से हैं? अभी इंडिविजुअल यानी कि सिंगल, तो कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक कमोडिटी की डिमांड. ओके, या एक आदमी की डिमांड, एक पर्सन की डिमांड, यानी कि एक पर्सन कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है. या इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि सिंगल पर्सन की सप्लाई, यानी कि एक प्रोड्यूसर कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस या सप्लाई कर रहा है. देन हियर वी स्टडी अबाउट द इनकम, इंडिविजुअल इनकम. ना इंडिविजुअल इनकम मीन्स व्हाट? एक पर्सन की इनकम. ओके, या एक कंपनी की इनकम. इट डील्स विद स्टडी अबाउट पर्टिकुलर फर्म, यानी कि माइक्रो में हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? फर्म के बारे में. अभी फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म मीन्स व्हाट? एक कंपनी. फर्म मीन्स व्हाट? कंपनी, यानी कि एक सिंगल कंपनी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. सो हियर इंडिविजुअल, समझा इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हैं मीन्स व्हाट? सिंगल पर्सन की डिमांड या एक कमोडिटी की डिमांड, एक कमोडिटी की सप्लाई या एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, या इनकम एक पर्सन की इनकम, और या फिर एक कंपनी, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करें. नाउ कम टू द मैक्रो. जैसे अभी माइक्रो कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड. तो उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. अभी मैक्रो भी कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड. मैक्रो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये जो इंग्लिश वर्ड है ग्रीक के मैक्रोस ये वर्ड से लिया गया है. Now what is a macros? तो अभी macros का मतलब MIKROS. Okay, macros MIKROS. Now what is a macros? तो अभी macros का मतलब क्या होगा? Macros means what? Large. Okay, macros का मतलब क्या आता है? Large. Okay, MIKROS. MICROS
इंग्लिश वर्ड है, और ये जो इंग्लिश वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस, इस वर्ड से इसका जन्म है। नाउ व्हाट इज अ मैक्रोस? मैक्रोस मींस व्हाट? मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस? मैक्रोस मींस व्हाट? लार्ज। ओके, तो लार्ज यानी कि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? तो एग्रीगेट। ओके, एग्रीगेट मींस व्हाट? एक आदमी के बारे में नहीं, तो एग्रीगेट यानी कि सभी का एक साथ यहाँ पे हम लोग स्टडी कर। ओके, तो हियर वी डिड स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट। तो हियर वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल। यहाँ पे एग्रीगेट। मैक्रो में हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स व्हाट? एक नहीं, वी आर कंसिडरिंग द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल यानी कि जैसे यहाँ पे एक डिमांड ले रहे हैं, एक कमोडिटी की डिमांड, यहाँ पे क्या आएगा? एक कमोडिटी की डिमांड नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा? हियर आल्सो वी स्टडी द डिमांड, लेकिन यहाँ पे एक कमोडिटी की डिमांड नहीं आएगी, तो क्या आएगी? एग्रीगेट डिमांड। नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट मींस व्हाट? टोटल। और यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, एक, और एग्रीगेट का मतलब क्या आ रहा है? टोटल। ओके, तो एग्रीगेट मैक्रो किसके बारे में स्टडी कर रहा है? टोटल या होल, उसके बारे में स्टडी कर रहा है, और मैक्रो सिंगल के बारे में। तो हियर टोटल डिमांड यानी कि कंट्री में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज, उनकी जो टोटल डिमांड है, दैट इज कॉल्ड एज ना एग्रीगेट डिमांड। देन जैसे यहाँ पे हम लोग सप्लाई स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये किसकी सप्लाई है? वन कमोडिटी की। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। तो अभी एग्रीगेट सप्लाई मीन्स व्हाट? द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द कमोडिटी विद इन ए कंट्री, यानी कि कंट्री में, देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी जो टोटल सप्लाई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। देन यहाँ पे भी हम लोग इनकम स्टडी करेंगे, लेकिन एक आदमी की या एक कंपनी की इनकम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न। फिर आपण म्हणतो राष्ट्रीय उत्पन्न। तो हियर एक पर्सन की इनकम नहीं देखेंगे, तो पूरे कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हियर वी आल्सो स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। यहाँ पे हम लोग और किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मीन्स व्हाट? द एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विद इन अ इकोनॉमी। पूरे इकोनॉमी में जो कमोडिटी की जो प्राइसेस चेंज हो रहे ऑन एन एवरेज। ओके, तो एवरेज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विद इन अ इकोनॉमी। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। To understand the concept of micro किसके बारे में स्टडी कर रहा है? इंडिविजुअल के बारे में। ओके, माइक्रो स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? सिंगल। तो हियर वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स एक, सिंगल। तो सिंगल कमोडिटी, सिंगल पर्सन, या वो सिंगल कंपनी, या इनकम, एक पर्सन की इनकम, उसके बारे में, एक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। मैक्रो में हम लोग किसके बारे में स्टडी करें? टोटल, यानी कि सिंगल नहीं रह रहे, तो कंट्री में जितने भी ये है, कंट्री में जितने भी पर्सन है, या पूरे कंट्री की जो इनकम, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करें, तो उसको हम लोग टोटल या क्या कहेंगे? एग्रीगेट। तो मैक्रो किसके बारे में स्टडी कर रहा है? एग्रीगेट के बारे में। यहाँ पे हम लोग सिंगल के बारे में स्टडी करेंगे, तो किसके बारे में स्टडी करेंगे? एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स व्हाट? टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। क्लियर? नाउ हियर माइक्रो में हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? एक, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, एक कमोडिटी की डिमांड हो सकती है, या एक कमोडिटी की सप्लाई हो सकती है। देन एक पर्सन हो सकता है, या वो पर्सन की इनकम हो सकती है। हियर वी स्टडी अबाउट द इनकम ऑफ
सिंगल पर्सन. तो हियर वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल इनकम, यानी कि एक पर्सन की या एक कंपनी की इनकम हो सकती है, या फिर वी स्टडी अबाउट द प्राइस. प्राइस यानी कि किसकी प्राइस लेंगे, एक कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे हम लेंगे. यानी कि एक कमोडिटी, एका व्यक्तीची मागणी किंवा एका प्रोड्युसरचा पुरवठा. एक प्रोड्युसर किती प्रोड्यूस करतोय आणि सप्लाय करतोय, एका व्यक्तीची इन्कम किंवा एका वस्तूची किंमत, याचा आपण इथे स्टडी करतो. मैक्रो में किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, सिंगल के बारे में नहीं, तो टोटल, यानी कि टोटल यानी कि एग्रीगेट. तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड. ओके, एग्रीगेट डिमांड मीन्स व्हॉट, कंट्रीमध्ये जेवढे पण गुड्स अँड सर्व्हिस प्रोड्यूस होतात त्या सगळ्या वस्तूंची एकूण जी मागणी आहे, देशामध्ये जेवढे पण उत्पादन होतात आहे त्या सगळ्यांची जी एकूण मागणी आहे त्याला म्हणतात ॲग्रिगेट डिमांड. किंवा वस्तूंमध्ये जेवढं पण उत्पादन होत आहे सगळ्या वस्तूंचं मिळून पूर्ण देशामध्ये जेवढं पण उत्पादन होत आहे त्याला आपण काय म्हणू, ॲग्रिगेट सप्लाय, यानी की टोटल सप्लाय. तर या इथे आपण जसं इन्कम घेतलं मायक्रोमध्ये, तर इकडे पण आपण इन्कम स्टडी करतो, पण एका पर्सनची इन्कम नाही येणार. तर या इथे काय येणार, नॅशनल इन्कम. सो हिअर वी स्टडी अबाउट द नॅशनल इन्कम. ओके, सो हिअर वी स्टडी अबाउट द नॅशनल इन्कम. ओके, नॅशनल इन्कम मीन्स व्हॉट, कंट्री की इन्कम. हिअर वी स्टडी अबाउट द नॅशनल इन्कम. देन we study about the general price level in the economy. ये जैसे यहाँ पे हम लोग प्राइस यानी कि एका वस्तूची किंमत आपण इथे घेतोय, पण इथे आपण काय घेतोय, जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनॉमी. जनरल प्राइस लेवल मीन्स व्हॉट. आता जनरल प्राइस लेवल कशाला म्हणतात, तर सर्व वस्तूंची किंमत आहे त्यांची टोटल, त्यांच्यामध्ये सरासरी जो बदल होतोय. ओके, म्हणजे देशामध्ये जेवढे पण उत्पादन होतात आहे त्या सर्व वस्तूंची जी किंमत आहे त्यांची बेरीज आणि त्यांची सरासरी, त्या सरासरीला आपण काय म्हणतो, जनरल प्राइस लेवल इन द. क्लियर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. वन मोर डिफरेंस वी कैन सी बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, वी आर मेकिंग द यूज ऑफ स्लाइसिंग मेथड फॉर स्टडिंग द माइक्रो. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करने के लिए हम लोग स्लाइसिंग मेथड का यूज करते हैं. स्लाइस, काप, भाग. तो स्लाइसिंग मीन्स व्हाट, हम लोग जो पूरा होल यूनिट है उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे अभी हमको एक पर्सन की इनकम चाहिए, तो हम लोग को एक पर्सन की इनकम कैसे मिलेगी, तो हमारे पास टोटल नेशनल इनकम है, कंट्री की इनकम है. तो कंट्री की इनकम को अगर हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो मुझे एक पर्सन की इनकम मिलेगी. यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरे कंट्री की इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना इनकम आएगा. ओके, तो यानी कि मैंने क्या किया, ये होल जो है, होल यानी कि नेशनल इनकम को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, तो मुझे मिलेगा कि हर एक इंडिविजुअल को कितनी इनकम है. क्लियर. तो हियर दिस मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि हम लोग होल को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये जो मेथड है इसको क्या कहते हैं, स्लाइसिंग मेथड. जैसे आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है और आपके डैडी की इनकम कितनी है, 20,000. तो अभी वो 20,000 अगर हम लोग 5 पर्सन में डिवाइड करेंगे तो हर एक पर्सन को कितनी इनकम आएगी, दैट इज 4,000. ओके, 4,000 आएगी हर एक पर्सन को, यानी कि एक पर्सन को कितनी इनकम आएगी, यानी कि हमने इसको 20,000 को 5 में डिवाइड किया तो हर एक को कितना आएगा, 4,000. तो ये जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. लेकिन मॅक्रो स्टडी करने के लिए, मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडी करण्यासाठी आपण कोणती मेथड यूज करतो, लंपिंग मेथड. ओके, टू स्टडी द मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडी करण्यासाठी आपण कोणती मेथड यूज करतो, लंपिंग मेथड. तर आता स्लाइसिंग आणि लंपिंग मध्ये काय डिफरन्स आहे. स्लाइस मध्ये आपण काय केलं, जी टोटल इन्कम आहे ते पर्सन मध्ये डिवाइड केली, बरोबर. टोटल इन्कम ला आपण पर्सन मध्ये
डिवाइड केलं. ओके, म्हणजे जी टोटल आहे त्याला इंडिव्हिज्युअल मध्ये वाटलं. लंपिंग मध्ये उलटा करणार आहोत. आपण काय करणार, प्रत्येक पर्सनची इन्कम आहे त्याला आपण काय करतो, ऍड करणार. लंपिंग मीन्स व्हॉट, वी ऍड. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीची जर इन्कम जर मी ऍड केली, आता प्रत्येक व्यक्ती, आता 5 व्यक्ती आहेत, प्रत्येक व्यक्तीची इन्कम किती आहे, 4,000. मग मी 4,000 5 वेळा ऍड केले तर मला किती मिळेल, 20,000. ओके, तो ह्या इथे आपण डिवाइड नाही करत आहे, आपण काय करतोय, ऍड करतोय. ही जी मेथड आहे, दिस मेथड ऑफ स्टडी is called as a lumping method. So this method is called as a lumping method. Clear? Okay. So microeconomics, to study the microeconomics, we are making the use of slicing method. Lekin to study the macroeconomics, we are making the use of मैक्रो स्टडी करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, लंपिंग मेथड. माइक्रो के लिए स्लाइसिंग. क्लियर? The difference between micro and macro. So again, once again I repeat, micro derived from the Greek word. कौन से ग्रीक वर्ड से माइक्रो ये लिया गया है, दैट इज अ माइक्रोस, MICRO. माइक्रो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन MIKROS माइक्रोस ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड. तर ह्याची उत्पत्ती कशी झाली आहे, मायक्रोस, ग्रीक मधील मायक्रोस पासून झाली. मॅक्रोची उत्पत्ती कशी झाली आहे, ग्रीक मधील मॅक्रोस, MAKROS, मॅक्रोस. ओके, ग्रीक मधील मॅक्रोस पासून याची उत्पत्ती झाली. माइक्रो कशाबद्दल स्टडी करतोय, इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन. एंड मैक्रो होल इकोनॉमी, पूरा कंट्री के बारे में स्टडी कर रहा है. और ये सिंगल पर्सन विद इन अ कंट्री, वो कंट्री के एक आदमी के बारे में स्टडी कर रहा है. वो ये क्या हो सकता है, एक कमोडिटी की डिमांड हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, या इनकम हो सकती है, या वो कमोडिटी की प्राइस हो सकती है. मैक्रो किसके बारे में स्टडी कर रहा है, टोटल, यानी कि एग्रीगेट के बारे में. वो एग्रीगेट क्या हो सकता है, टोटल कंट्री की डिमांड हो सकती है, कंट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि कितनी टोटल सप्लाई हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई. तो हियर वी स्टडी अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई, एंड वी आल्सो स्टडी अबाउट द नेशनल इनकम, और वी स्टडी अबाउट द जनरल प्राइस लेवल इन द. अगेन हियर वी स्टडी अबाउट द स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो स्टडी करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मीन्स व्हाट, वी आर डिवाइडिंग द होल इनटू द पार्ट. हम लोग क्या कर रहे हैं, होल यूनिट को हम लोग पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग. और यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लंपिंग. लंपिंग मीन्स व्हाट, वी ऐड इंडिविजुअल यूनिट. ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करें, इंडिविजुअल यूनिट को ऐड. क्लियर? So this is the difference between microeconomics and macroeconomics. Okay, the next lecture we will do the historical review of economics, which we are already done, and we will study about the scope of microeconomics. Okay, so now we will stop over here. Now if you are having any doubts, you can ask.